Hello. So today again we are here to discuss some important topics. जैसा कि हमने बताया था कि for 2025 prelims we are discussing around 250 topics which are more relevant and more important. So in that context we have come up with some more important topics. So without wasting of time let us discuss them. जो आज के टॉपिक हैं हमारे रहने वाले वो ये हैं. सबसे पहले तो है डिलिमिटेशन कमीशन टॉपिक्स. या टॉपिक्स. First, we will study about delimitation commission. Delimitation commission. Delimitation commission और delimitation itself पूरा एक होलिस्टिक इस टॉपिक को देखते हैं. और द इम्पोर्टेंट मोर इम्पोर्टेंट इज डिलिमिटेशन कमीशन. हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है डिलिमिटेशन कमीशन. Since we are studying here these topics from the perspective of prelims, so we will not go into much detail. So we will look delimitation commission. ये important हो जाता है हमारे लिए. Second is collegium versus NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. ये भी काफ़ी न्यूज़ में है आजकल बिकॉज ऑफ हाई कोर्ट जज, दिल्ली हाई कोर्ट जज, जो कि अभी कैश एक इशू आया है. Means there was a huge cash which was found in the premises of this Delhi High Court judge. In that context, there was a debate between Collegium and NJAC. Collegium और NJAC की डिबेट जो वहीं उसी इशू को लेके फिर से ये न्यूज़ में है. एंड द थर्ड इज इन हाउस प्रोसीजर. इन हाउस प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी. ये क्या है? ये भी इसी दिल्ली हाई कोर्ट जज का जो केस आया अभी हाल ही में उसी को लेकर है. इन हाउस प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक इंक्वायरी, अपना खुद का एक इन हाउस प्रोसीजर है जिसके अकॉर्डिंग वो अपना एक इंक्वायरी कराता है किसी भी जज के अगेंस्ट. इफ देर इज एनी अलीज्ड मिसबिहेवियर अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर जज, देन in house there is an in-house procedure of the Supreme Court. In that in-house procedure there is a committee. So we will look all these aspects into when we will study it in detail. So these are the topics for today. Delimitation commission. Although the delimitation commission was recently asked in the UPSC prelims, I think in 23 or 24, in any one of the year. But there are many other aspects which become more important even for this year prelims. Similarly, collegium is very important. Although NJAC has already been declared unconstitutional by the Supreme Court, but since it is again in news, so we will also see some important aspects which are associated with NJAC. So these are the topics. So first let us start with the delimitation commission. Delimitation. First we will start with delimitation. So what is the meaning of delimitation? Delimitation, simple meaning here we are studying it in context of political टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट के कंटेक्स्ट में हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, और वो भी इंडिया के कंटेक्स्ट में. सो डिलिमिटेशन कमीशन का मीनिंग होता है सिंपली रीड्रॉइंग एंड रीएडजस्टमेंट ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा. उनका जो रीएडजस्टमेंट है, उनकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं जो लोकसभा की और लेजिस्लेटिव असेंबली की, उनका रीएडजस्टमेंट, नंबर ऑफ सीट को इंक्रीज करना डिक्रीज करना, उसका ही मीनिंग यहाँ पर हम डिलिमिटेशन से.
मीनिंग हमारा डिलिमिटेशन है, ठीक है। और डिलिमिटेशन में अभी हाल ही में ये न्यूज़ में चल रहा है डिलिमिटेशन काफ़ी। और क्योंकि 2026 के बाद डिलिमिटेशन होना बहुत होना है, मैंडेटरी है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन ऑफ I think there is a provision, constitutional provision, which mandates the redrawing or readjustment of seats as per the last census. I think the article is 80. If you look at the constitutional provision, then that constitutional provision is Article 82 for Lok Sabha and 170 for Legislative Assembly. You can write down Article 82, 82 for Lok Sabha and 170 for Legislative Assembly. Legislative Assemblies. These two articles mandate readjustment or redrawing of constitutional territories of India as per the लास्ट सेंसस और लेटेस्ट सेंसस। किसके बेसिस पे हमको इसको करना है? जो कि अभी हाल ही में सेंसस हुआ है। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देख लेते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन जो इंडिया में स्टार्ट हुआ है और कैसे, और आई मीन कितने कमीशन अब तक हो चुके हैं। सो डिलिमिटेशन कमीशन जो लास्ट सेंसस के बेसिस पर हुआ है वो है 1972। 1972 में जो डिलिमिटेशन कमीशन बना था और जो 1973 में उसने रिकमेंडेशन जो दी थी उसके बेसिस पर जो सेंस जो रीएडजस्टमेंट हुआ है सीट्स का, दैट इज बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस। 1971 सेंसस के बाद क्या हुआ है, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो फिक्स रही हैं। अब कोई रीएडजस्टमेंट ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, 2002 में हुआ है, बट नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो सेम रही थी, नंबर ऑफ सीट्स में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका डिलिमिटेशन इंडिया में। और जो 1971 के सेंसस पे जो डिलिमिटेशन हुआ था उसके बाद क्या हुआ है, सेंसस उसको नंबर ऑफ सीट जो फिक्स थी उनको फिक्स ही रखा है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने उसको फ्रीज कर दिया था टिल 2000, और 2000 में फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसने क्या किया था, 2026 तक उसको फर्दर फ्रीज कर दिया। तो अब 2026 आने वाला है। अब 26 के बाद जो है डिलिमिटेशन होना जरूरी है। अब डिलिमिटेशन पे इतने ज्यादा क्वेश्चन क्यों उठ रहे हैं? व्हाई द सदर्न स्टेट्स आर more concerned about delimitation? So the important and the main factor which is which is problematic for the southern state is that delimitation is based on the last census or latest census। जो भी लेटेस्ट सेंसस हुआ है आपका पॉपुलेशन का उस पर बेस्ड है ये। तो अगर पॉपुलेशन एकदम अभी हाल ही की पॉपुलेशन लेते हैं जो हमारा सेंसस हुआ है, फॉर एग्जांपल 2011 का, तो सिंस 1971 2011 इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन। इन डिकेड्स में अगर पॉपुलेशन देखें आप 1971 से 2011 तक काफ़ी हद तक बहुत इंक्रीज हुई है। और ज़्यादा जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो नॉर्दर्न स्टेट्स में हुई है, ना कि सदर्न स्टेट में। करंटली इन सदर्न स्टेट्स देयर टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ वेरी लो, अराउंड 1.6 or 7, that is below the replacement level. But in northern states, the total fertility rate is very high, around 3.5 on an average if you take all the states. तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बड़ी है नॉर्दर्न स्टेट्स में। और अगर आप पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर नंबर ऑफ सीट्स प्रोवाइड करते हो, रीएडजस्टमेंट करते हो इसका, तो ज़्यादा सीट्स चली जाएगी नॉर्दर्न स्टेट्स को, और सदर्न स्टेट्स जो हैं दे विल लूज देयर सीट्स। सो इसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा कंसर्न है सदर्न स्टेट्स का कि उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। they brought up many policies and they controlled the population, and for that they are going to be penalized। मीन्स उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है और उसके लिए उनको पिनलाइज किया जाएगा। किस तरीके से पिनलाइज किया जाएगा कि दे नंबर ऑफ सीट्स विल बी रिड्यूस्ड। उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट हैं या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा की सीट हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट, एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग according to an estimate,
जो सदर्न स्टेट्स हैं उनमें सीट्स कुछ 25% से रिड्यूस हो जाएगी 17% तक। और जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, आप अगर नॉर्दर्न की बात करें, नॉर्दर्न स्टेट्स, तो नॉर्दर्न स्टेट्स में सीट्स जो हैं वो 40% से बढ़कर 60% तक हो सकती हैं। दिस इज वन एस्टीमेट। ओके, तो अल्टीमेटली दे आर लूजिंग द सीट्स। तो जाहिर सी बात है वो अपोज करेंगे कि जो सेंसस है या तो आप बहुत पुराना लो, या फिर कोई और स्कीम इस तरीके की लेकर आओ जिससे कि उनको सीट्स का नुकसान ना हो। देयर सीट शुड नॉट बी रिड्यूस्ड। ओके, और एक और कंसर्न जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, दैट इज 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन, आपने देखा होगा जब भी फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देता है फॉर द डिवोल्यूशन ऑफ फंड, देन पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। सो पॉपुलेशन, इस 16th फाइनेंस कमीशन ने जो पॉपुलेशन रखी है वो 2011 की। अब 2011 की पॉपुलेशन देखेंगे तो 2011 में अगेन वही बात है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन की नॉर्दर्न स्टेट्स में। तो फंड अगर आप लिंक करते हैं पॉपुलेशन से, तो नॉर्दर्न स्टेट्स हैव ह्यूज पॉपुलेशन, तो बहुत ज़्यादा फंड चला जाएगा उनको। तो कहना ये है कि मीनिंग इसका ये हुआ कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस पॉपुलेशन को बढ़ाने की वजह से फायदे में रहेंगे, एंड सदर्न स्टेट्स दे विल बी एट डिसएडवांटेजेस पोजीशन बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस देर आर, आए दिन आप देखते होंगे न्यूज़ में कि सदर्न स्टेट से दे जो है वो अपोज कर रहे हैं और वो डिलिमिटेशन कमीशन को इसको डिलिमिटेशन के अगेंस्ट में है। तो वो इसी वजह से ही, यही रीज़न है। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। ये तो देखिए फैक्ट्स हैं, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज डिलिमिटेशन कमीशन। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन, उसको देख लेते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। कमीशन ऑफ इंडिया, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। देयर आर फ्यू फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स जो आपको याद रखने। दोज फैक्ट्स विल हेल्प यू इन एलिमिनेटिंग योर ऑप्शंस। ओके, सबसे पहली बात मैं लिख देता हूं यहां पर, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी, व्हाट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी? An institute, an organization, a body which is established by an act is called statutory body. So it is established by an act of parliament. And what is that act? Delimitation Commission Act. टाइम टू टाइम डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बनता है, उसी के तहत बनी हुई बॉडी है डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग दिस बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड। सो इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, रिमेंबर दिस फैक्ट। और कितने अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आए हैं वो भी विल सी। सेकंड है, इट्स अवार्ड्स, इट्स अवार्ड्स आर फाइनल। अवार्ड्स मींस द रिकमेंडेशन, जो भी उसने अपनी रिकमेंडेशन दी है, किस स्टेट में कितनी सीट बढ़नी है, कितनी कम होनी है, कितना इंक्रीज होना है, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी का कौन सा पार्ट किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरे में लगना है, या नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को किसी स्टेट में बढ़ाना है कि घटाना है, जो भी इसकी रिकमेंडेशन है, दीज रिकमेंडेशंस आर फाइनल। फाइनल का मीनिंग ये है दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड, कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। कोर्ट में आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते। दिस इज द मीनिंग ऑफ द फाइनल हेयर। एंड दीज अवार्ड्स आर लेट डाउन बिफोर पार्लियामेंट एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। जो भी इसकी रिकमेंडेशन है वो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी जाती है, बट दीज रिकमेंडेशंस आर नॉट मॉडिफाइड। जो भी रिकमेंडेशन है वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली इस रिकमेंडेशन को मॉडिफाई नहीं करते हैं। ठीक है, ऑल्दो देयर मे बी अ डिस्कशन or sort of debate, but these are not modified.
not modified by parliament, not modified. Not modified by parliament. So this is the second fact, right? It is a statutory body. Its awards are final and they cannot be challenged in any court of law. And these are its awards are also not modified by the parliament. And one more fact which is associated with Delimitation Commission. It is an independent and autonomous body. It means this body is not a part of any other organization or institution. It is an independent and autonomous, an independent body. इंडिपेंडेंट बॉडी, ये है इसकी। और अभी तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन बने हैं हमारे इंडिया में? अभी तक 4 डिलिमिटेशन कमीशन बने हैं। लेट मी राइट डाउन दिस। फर्स्ट was constituted in 1952, then in 1963 commission, in 1973, then in 2002. These are the 4 delimitation commissions which have till now established in or constituted in India. ये 1952 में एक कमीशन एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग बना। देन इन 1970 इन 62 देयर वाज अनदर डिलिमिटेशन एक्ट passed by the parliament. Then and in 1963 commission was established. So similarly these commissions were established. So 4 commissions अभी तक यहाँ पर बने हैं। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। 2002 में भी डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया और डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो जो उसमें 2002 में किया था उसमें सेंसस लिया था 2001 का। ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है थोड़ा सा एक पॉइंट है, इसको हमें याद रखना है। डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002। अब इसने क्या किया, जो सेंसस 2001 का था उसकी पॉपुलेशन लेकर रीएडजस्टमेंट किया। जो भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनका रीएडजस्टमेंट किया। बट रिमेंबर वन थिंग हियर, there was simply a readjustment of territorial constituencies, but there was not an increase or decrease of number of seats. Means total number of seats were remains the same, only readjustment means किसी constituency का size अगर बड़ा हो गया उसको size छोटा करके उसको दूसरे constituency में ऐड कर दिया होगा, ऐसा कुछ किया था इसमें। बट सेंसस ये लिया था, लेकिन इसमें कोई नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया था। जो लास्ट नंबर ऑफ जो रीएडजस्टमेंट हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स का इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हुई है, वो यहीं पर हुआ था 1972 में, जो कि सेंसस लिया था 1971 का सेंसस था ये। उसके बाद से 1971 के बाद से सेंसस से नंबर ऑफ सीट्स जो फिक्स है, नंबर ऑफ सीट्स जो है फिक्स है टिल नाउ। यहां पर इसको 2000 तक फिक्स किया था इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, अमेंडमेंट एक्ट। फिर 2000 से 2026 तक फिक्स किया है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसने। तो ये छोटे 2 फैक्ट हैं, इनको याद रखना। तो ये हमारा डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में था। हो सकता है कि क्वेश्चन अब नहीं आए क्योंकि अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया है, but few of some of these facts may be helpful in eliminating some options. Next topic is collegium versus NJC. NJAC, National Judicial Appointment Commission.
तो कोलिजियम वर्सेस एनजेसी का जो डिबेट अभी हाल ही में स्टार्ट हो गया है, उसके पीछे भी रीजन यही है कि a huge amount of cash was found in the premises of a Delhi High Court judge named Yashwant Verma. Actually, this was the name of यशवंत वर्मा। दिल्ली हाई कोर्ट का जज है ये, दिल्ली हाई कोर्ट जज। इसी के कंटेक्स्ट में इसका जो डिबेट है वो आया, एंड राज्यसभा chairman has said that if NJC would have been there, means National Judicial Appointment Commission would have been there, then the picture would have been different. हो सकता है कि ये केस नहीं होता, ऐसा कुछ उसका कहना। उसी से फिर ये एक डिबेट इमर्ज हुआ कि वी शुड हैव NJC टाइप ऑफ institution for the appointment of the judges to the higher judiciary. So we will look all the aspects which are associated with collegium as well as NJAC. तो पहले थोड़ा सा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस का कैसे अपॉइंटमेंट रहा है हायर जुडिशरी में। सो इन 1950 वी हैव फेडरल कोर्ट। 1950 में हमारे पास फेडरल कोर्ट थी, पहले फेडरल कोर्ट बोलते थे, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलते थे। फेडरल कोर्ट के जितने भी जजेस थे दे वर ट्रांसफर टू द ऑल द जजेस वर ट्रांसफर टू दी सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट बनी तो इसमें इनको ट्रांसफर कर दिया गया, एंड एट दैट टाइम गवर्नमेंट अपॉइंटेड दीज जजेस टू द जुडिशरी, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल और नेक्स्ट 27 years. Means government continued the process of appointment of judges to the higher judiciary from 1950 to 1977 around for the next 27 years तक। इसमें कोई टसल नहीं था, कोलिजियम भी नहीं थी। कोलिजियम तो बाद में इवॉल्व हुई है, वहां पहले गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती थी जजेस को, ये चलता रहता था। बट इन 1970s में क्या हुआ, इन 1970s कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, और रादर मोर अप्रोप्रिएट गांधी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड few judges as the Chief Justice of the Supreme Court, violating the seniority norms. देखिए सीनियरिटी नॉर्म्स क्या थे 1950 से, और जो भी 1970 तक या 76 तक जब तक भी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ने किया, उस टाइम तक सीनियरिटी नॉर्म्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। सीनियरिटी नॉर्म्स मींस जो भी जज सीनियर है उसी को CJI बनाया जाता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता था। बट in 1970s इंदिरा गांधी लेड कांग्रेस गवर्नमेंट हैज वायलेटेड, और या फिर ये कह सकते हैं कि इन सीनियरिटी नॉर्म्स को उन्होंने फॉलो नहीं किया, सीनियरिटी नॉर्म्स वर नॉट फॉलोड, और 2 जजेस को ऐसा अपॉइंट किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, जो कि दूसरे सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करके बने। सबसे पहले तो ये थे इन 1972 A.N. रॉय। दिस वॉज द फर्स्ट वन हु सुपरसीडेड 3 सीनियर मोस्ट जजेस। इससे ज्यादा 3 सीनियर जजेस और थे सुप्रीम कोर्ट में, बट इसको CJI बनाया गया इन 1972। अगेन इन 1977 देयर वाज वन मोर जज, MH बेग। MH बेग को CJI बनाया गया, सुपरसीडिंग विच जज HR खन्ना। ये एक HR खन्ना जज थे, उनको सुपरसीड करके MH बेग को CJI बनाया गया। तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा बैकग्राउंड है उसको समझने के लिए कि कोलिजियम कैसे आया। तो यहीं से फिर ये टसल स्टार्ट हुआ कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है दे शुड बी इन द हैंड ऑफ जुडिशरी, बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज इंटरफेयरिंग विद द सिस्टम और प्लेइंग विद द सिस्टम। ठीक है, तो यहीं से फिर 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन हुआ, या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आई, दिस केशव नंदा भारती केस। इसके बाद से फिर जो कोलिजियम है उसका इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। सो दिस वाज द ब्रीफ हिस्ट्री। नाउ लेट अस सी द इवोल्यूशन ऑफ कोलिजियम, हाउ द कोलिजियम हैज इवॉल्व्ड। अब कोलिजियम को देख लेते हैं।
कोलिजियम, सबसे पहली बात तो कोलिजियम इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कोलिजियम इज जस्ट एन इनोवेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ये इनोवेशन कैसे आया था? इवोल्यूशन ऑफ कोलिजियम। 3 जजेस केसेस हुए हैं, 3, इनको हम इसी नाम से जानते हैं, 3 जजेस केसेस। और इन 3 जजेस केसेस की वजह से ही ये इवॉल्व हुआ कोलिजियम। द फर्स्ट वन, फर्स्ट जज केस जो था वो 1981 में, देन सेकंड इन 1991, थर्ड 1998। इसको देख लेना 91 है कि 93, ऐसी कुछ है, तो ये इससे ज्यादा मैटर नहीं करता, बस दीज वर द 3 जजेस केसेस। इन जजेस केसेस की वजह से कोलिजियम का इवोल्यूशन हुआ, कोलिजियम आया। कोलिजियम है क्या? कोलिजियम है कि इसमें एक कोलिजियम, अ काइंड ऑफ कमेटी of the Supreme Court judges who will be responsible for the appointment of judges to the higher judiciary, better whether it is the Supreme Court or the higher court। ठीक है, जितने भी हाई कोर्ट्स हों उनमें। तो ये कोलिजियम का यहाँ से इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। एंड देन अब कोलिजियम देखिए, कोलिजियम जो है वो दो हैं, दो तरीके, आई मीन कोलिजियम 5 मेंबर्स की भी है और कोलिजियम 3 मेंबर्स की है। जिस कोलिजियम में सीजेआई एंड अदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, if this is the composition of the collegium, then this collegium is responsible for the transfer of judges of the high court, appointment of judges to the supreme court, as well as appointment of judges to the chief justices of the high courts। ये इसके लिए तो अगर कोलिजियम ये है सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये कोलिजियम क्या क्या करेगी? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिसेस ऑफ हाई कोर्ट्स, एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, राइट। अब इसको देख लेते हैं। ये तो सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, और अगर सीजीआई प्लस 2 जजेस ऑफ हाई कोर्ट, अगर किसी हाई कोर्ट के 2 जज हैं, देखिए किसी भी हाई कोर्ट में अगर जजेस का अपॉइंटमेंट होना है तो जो कोलिजियम होगी वो सीजीआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और उस हाई कोर्ट के 2 जजेस होंगे। सो दिस कोलिजियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू हाई कोर्ट। ये है, अगर हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होना तो कोलिजियम ये रहेगी, और अगर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होना या ट्रांसफर होना एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को जज में, या फिर अपॉइंटमेंट होना जजेस का सुप्रीम कोर्ट को, तो कोलिजियम जो है वो ये रहेगी। बस ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, अपॉइंट कैसे किया जाता है? उसमें भी कोलिजियम होती है, उसमें कोलिजियम यही होती है, मीन्स जो सीनियर मोस्ट जज होगा, मीन्स फॉर एग्जांपल इफ देर इज ए सीजीआई, और जो वो सीजीआई रिटायर हो रहा है, उसके नेक्स्ट जो सीनियर जज होगा वो सीनियर जज सीजीआई बनेगा, और जो आउट गोइंग सीजीआई है वो उसको तब तक रिकमेंड करके जाएगा कि ही विल बी द नेक्स्ट सीजीआई, है ना। ही विल रिकमेंड, मीन्स द आउट गोइंग सीजीआई विल रिकमेंड टू द गवर्नमेंट that this person will be the next CGI। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो दिस इज द कोलिजियम सिस्टम, और कोलिजियम ये होते हैं।
एक CJI प्लस 2 जज का कोलिजियम होता है, एक CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस का कोलिजियम होता है। ओके, तो ये कोलिजियम सिस्टम अभी तक इसमें प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज दैट दिस सिस्टम इज वेरी ओपेक, मीन्स इट लैक्स द ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस सिस्टम में। Actually, for the appointment of judges to the High Court, for example, if 7-8 candidates have applied for the appointment to the judges of the High Court, अब अगर 2 ही को अपॉइंट करना है और 5 और हैं उसमें अप्लाई किए हैं, अब उनको रिजेक्ट कर दिया, 2 को अपॉइंट किया, बट जो रिजेक्ट किया तो उनको किस वजह पे किया? मीन्स व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन? मीन्स क्या है, ऐसा क्या उनके क्वालिफिकेशन में नहीं है जो दूसरे के क्वालिफिकेशन में है? मीन्स इट लैक्स इन हाउस प्रोसीजर, जो भी एक डिटेल स्क्रूटनी एनालिसिस होना चाहिए वो इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं दिस इज एन ओपेक सिस्टम। दूसरी बात यह है दिस सिस्टम इज नॉट अकाउंटेबल, कुछ कैंडिडेट्स को अपॉइंट कर लिया, कुछ को नहीं किया, तो व्हाट इज द अकाउंटेबिलिटी? इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? And the third thing is it lacks the representation from the executive branch. If you look at some other countries like the UK and the USA and even Australia and many other countries, a sort of commissions have been established in these countries where there is a representation from the judiciary as well as the executive. So on the similar lines, in India also, this political parties have demanded that there should be a commission, or there should be an organization which is an independent organization, or which includes the representation from the executive as well as judiciary. तो इसके पीछे इसीलिए इस कोलिजियम को रिप्लेस करने के लिए लेकर आए थे NJC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब उसको देख लेते हैं। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। So first we will look those pieces of legislation which have brought up this commission. तो पहला तो, और ये 2014 में आया था, हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, बट क्योंकि अभी थोड़ा सा न्यूज में रहा है तो कुछ इससे जुड़ी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए प्रीलिम्स में। सो इट वाज फर्स्ट ब्रॉट अप इन 2014 थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन 99th अमेंडमेंट एक्ट ये, और दूसरा इसमें था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, ये 2 पास किए थे, NJEC एक्ट। ओके, so these two were passed, and these two, they were actually passed under this article 124। ये सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए ये बिल आया 99th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, और इस एक्ट को पास किया गया। और इन दोनों ने क्या किया कि जो कोलिजियम सिस्टम था उसको रिप्लेस किया, मीन्स रिप्लेस करना था उसको, और ये कमीशन को स्टैब्लिश करना था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, अब इसमें हम देख ही लेते हैं कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में मेंबर्स क्या, इसका कंपोजिशन क्या था। उसके बाद देखते हैं कि इसको फिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कंपोजिशन ऑफ NJC, composition of NJAC. Actually, it was the 6-membered bodies, in which one was the CJI, Chief Justice of India, who was the ex officio member of this commission. Next, 2 judges, senior most judges of the Supreme Court, who were also the ex officio members of the commission. And the next was Union Minister of Law and Justice. He or she was also the ex officio member of the commission. So till now we have 4 members. Now 2 more members were 2 eminent persons from the civil society, which
which have to be nominated by a committee consisting of Prime Minister, CJI, and the leader of opposition from the Lok Sabha. And one of the eminent person should be from the SC, ST, OBC, minorities और women. देख लेते हैं, मैं लिख देता हूं. इसमें CGI रहेगा, CGI के साथ 2 senior most judges, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो 3 लोग तो ये हो गए जुडिशरी से. एक क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस. तो ये गवर्नमेंट से हो गया, एग्जीक्यूटिव का हो गया. अब इसमें 2 एमिनेंट पर्सन रहेंगे, 2 एमिनेंट पर्सन्स फ्रॉम सिविल सोसाइटी. और इनका जो नॉमिनेशन होगा इन 2 पर्सन्स का, यानी कि दीज 2 एमिनेंट पर्सन टू बी nominated by a committee consisting of CJI, PM प्लस का लीडर ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम लोकसभा से. ये रहेगा. तो दिस वाज द कंपोजिशन. आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर मेजोरिटी में कौन है. मेजोरिटी में तो कोई नहीं है, 3 जुडिशरी से हो गए. और अगर ये 2 एमिनेंट पर्सन सिविल सोसाइटी से अगर अपॉइंट करे जाते हैं, मान लेते हैं अगर ये भी दोनों गवर्नमेंट के अपने आदमी हैं, तो 1 ये और 2 ये, 3 लोग तो ये हो गए गवर्नमेंट साइड से हो सकते हैं मैक्सिमम, और 3 जुडिशरी से हो सकते हैं. तो 3-3 का बन गया. तो यहां पर डेडलॉक हो सकता है. अगर ये कंसेंसस बेस्ड अगर कमीशन है तो देयर में भी ये डेडलॉक. ठीक है. अब इसमें प्रॉब्लम कहां आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किया. सबसे पहली बात तो ये कि इसमें कोई भी 2 मेंबर्स, एनी 2 मेंबर्स, वेदर फ्रॉम द सिविल सोसाइटी और वेदर फ्रॉम द जुडिशरी, दे हैव द वीटो पावर ऑफ डिसेंटिंग. मीन्स दे कैन डिसेंट एंड दे कैन अप्लाई देयर वीटो पावर. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्टिकुलर जज को अपॉइंट के लिए रिकमेंड कर दिया इस कमीशन ने, और इस कमीशन के 6 मेंबर में से 2 ने अगर डिसेंट किया कि वी डू नॉट एग्री विद दिस पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, तो वो फिर प्रपोजल आगे नहीं जाएगा. मीन्स वो एक तरीके से रिकमेंडेशन वहीं पर कैंसिल हो जाएगी. ठीक है. तो इसमें आप देख लेते थे चैलेंजेस क्या थे इसके. चैलेंजेस कह सकते हो इसमें, या इश्यूज कह सकते हो क्यों ये डिक्लेयर किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो पहला तो ये था कि वीटो पावर दे रखी थी, वीटो पावर टू डिसेंटिंग मेंबर्स. अब एक तो लॉ यूनियन मिनिस्टर, 2 एमिनेंट पर्सन हो गए सिविल सोसाइटी के. तो इन 3 में से अगर दो को भी गवर्नमेंट अपनी साइड रखा, एक तो यूनियन मिनिस्टर है ही, उन 2 में से कोई भी एक इस गवर्नमेंट की साइड आ गया, तो वो डिसेंट अपना कभी भी वीटो पावर लगा सकते हैं और प्रपोजल को रोक सकते हैं. तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस नहीं रही अपॉइंट करने की जजेस को. मीन्स द पावर has transferred, or we can say that the government can now play a dominant role here. ठीक है. The second thing, primacy of judiciary in appointment of judges has been undermined. ये आप देख रहे हैं प्राइमेसी नहीं ले रही. ठीक है. तीसरा, इट वॉज अगेंस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अगेंस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. अगर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट में है ये एनजेसी, तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ
part of basic structure doctrine. The Supreme Court, with the help of this line itself, that it interferes with the independence of judiciary, the Supreme Court has declared this NJC as unconstitutional or against the बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अक्टूबर 16 2015 को बाय अ 5-member बेंच हैज डिक्लेयर्ड इट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसका एक फ्यूचर क्या हो सकता है, मींस अगर अब इस फ्यूचर में अगर इसको फिर से एनजेसी को अगर लेकर आया जाता है तो क्या हो सकता है? तो कुछ फ्यूचर सजेशन इस तरीके के हो सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी को रिवाइव किया जाता है, एनजेसी को लेकर आया जाता है, तो फ्यूचर सजेशन में आप ये दे सकते हैं, एक तो जो वीटो पावर दी है डिसेंडिंग मेंबर्स को, उसको आप एबॉलिश कर दो यहां पर। सेकंड थिंग, देयर मे बी अ चांस ऑफ डेडलॉक। अगर 3 मेंबर्स एक साइड है, 3 इस साइड हो गए, तो डेडलॉक का चांस हो सकता है। तो सीजीआई को कास्टिंग वोट ये पावर दी जाए, कास्टिंग वोट लाइक स्पीकर इन दी लोकसभा। इस तरीके के सजेशन हो सकते हैं। एबोलिश वीटो, जो वीटो पावर दे रखी है उसको आप खत्म कर दो। इस तरीके के सजेशन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एनजेसी के बारे में हो गया पूरा। नेक्स्ट वी विल लुक द इन हाउस प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी। अगर किसी जज के खिलाफ कंप्लेन आती है, या कोई भी, जैसे कि अभी एक दिल्ली हाई कोर्ट जज, दिल्ली के हाई कोर्ट जज, उसके खिलाफ एक कंप्लेन आई है कि बहुत ज़्यादा कैश उनके प्रेमाइसेस के आसपास में पाया गया है। तो इस तरीके की अगर कोई कंप्लेन है तो क्या कोई इन हाउस प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट का, या डायरेक्ट एफआईआर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, कोई भी जज अगर इन्वॉल्व है इसमें, या फिर कोई इन हाउस प्रोसीजर है, या इसका इम्पीचमेंट होगा जज का, क्या वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सो आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो यही है, इन हाउस प्रोसीजर। इन हाउस प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, किसी भी जज के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेन आती है ऑफ एलिज्ड मिसबिहेवियर, कुछ इस तरीके की एलिज्ड मिसबिहेवियर, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया can constitute a committee, a 3 members committee. That 3 members committee will look into these complaint, or will prove this alleged misbehavior case, and it will recommend to the CGI accordingly. So let us see how this in-house committee function, or how it comes into picture. In 1999, a resolution was adopted by the Supreme Court for an in-house inquiry, and that resolution made public in 2014. ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये इन हाउस कमेटी बनाई जाती है, इन हाउस इंक्वायरी की जाती है। और इन हाउस इंक्वायरी के लिए क्या होता है कि whenever there is a complaint against a particular judge, then the concerned chief justice of that high court and the statements of that particular judge are recorded, and then after that the chief justice of India constitute a 3-member committee. ये किस 3 मेंबर की कमेटी बनाएगा? 3-member committee or body, 3-member committee body. These 3 members committee will look into will look into the allegations, will look into the issues against that particular judge. अगर ये इसकी रिकमेंडेशन इस कमेटी की होती है फॉर द रिमूवल, इफ इट्स रिकमेंडेशंस आर नॉट फॉर द रिमूवल ऑफ द जज, then that concerned judge is apprised accordingly. If its recommendation is for the removal of that particular judge, then CJI asked that particular judge to resign, or in case if the judge is not resigning, then in that case CJI
recommend these actually send these recommendation to the Prime Minister as well as the this President of India, so that a proper and formal process can be initiated against the removal of that judge in the parliament. Parliament में फिर उसका impeachment होता है अगर वो resign नहीं करता तो. So the recommendation of this committee is very important. And this composition क्या होगा, अगर कोई particular judge किसी particular high court के judge के against में अगर कोई complaint है, then the composition of this committee will be 2 chief justices of some other high courts and 1 judge of some other high court. 2 chief justices of some other high courts. देखिए, जो दूसरी हाई कोर्ट है उन्हीं के 2 चीफ जस्टिस को लिया जाएगा इस कमेटी में, और एक कोई और जज होगा, 1 more हाई कोर्ट जज. और ये भी हाई कोर्ट जज जो होगा ये उस पर्टिकुलर कोर्ट का नहीं होगा. फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली में यशवंत वर्मा हाई कोर्ट जज, उनके खिलाफ ये कंप्लेन आई, तो इसके लिए जो कमेटी बनी उसमें वो 3 जुडिशियल मेंबर थे. वो थे एक चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, एंड सेकंड चीफ जस्टिस वाज फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश, एंड थर्ड जज वाज फ्रॉम द कर्नाटका हाई कोर्ट. तो 2 चीफ जस्टिस और 1 जज. ये तो हो गया अगर कंप्लेन किसी हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट में. और अगर किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट में, तब वो कमेटी का कंपोजिशन क्या होगा. अगर इफ कंप्लेन अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के अगेंस्ट अगर कंप्लेन दे दी जाएगी, तो जो कमेटी होगी एक इसमें सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा, सुप्रीम कोर्ट जज, एंड 2 CJI चीफ जस्टिस ऑफ सम अदर कोर्ट. और अगर कंप्लेन किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट है तो 3 जज होंगे और तीनों ही सुप्रीम कोर्ट के रहेंगे. कमेटी ऐसी होगी. सो दिस इज कॉल्ड एज इन हाउस प्रोसीजर और इंक्वायरी. अच्छा, अगर रिजाइन नहीं देता है तब क्या होगा. जैसे कि हमने बताया कि पार्लियामेंट में फिर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और वो वहां पर फिर पार्लियामेंट में एक फॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. सो टिल नाउ there were only 2 judges against whom this impeachment process was initiated. The first one was in 1993 V Ramaswamy. एक ये जज थे V रामास्वामी. इनके अगेंस्ट में लोकसभा में 1993 में दिस वाज द फर्स्ट जज अगेंस्ट whom द इम्पीचमेंट प्रोसेस वाज स्टार्टेड. और लोकसभा में रेजोल्यूशन आया भी था, लोकसभा में रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ, बट 2/3 मेजोरिटी जो चाहिए थी दैट वाज नॉट एक्चुअली फुलफिल्ड इन दिस मोशन इन दिस प्रोसेस. सो 2/3 मेजोरिटी यहाँ पर नहीं हो पाई, इसलिए जो था उसके खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं हो पाया बी रामास्वामी के. अगेन इन 2011 में एक सुमित्र आई थिंक जैन करके कुछ समुद्र जैन है. समुद्र जैन ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे. इनके खिलाफ भी क्या हुआ था, इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और राज्यसभा में रेजोल्यूशन भी पास हो गया था इनके खिलाफ. बट आफ्टर द रेजोल्यूशन पास्ड इन राज्यसभा दिस पर्सन हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट. तो जैसे ही पोस्ट से रिजाइन दे दिया फिर रेजोल्यूशन का कोई मीनिंग, उसको रिमूव करने का कोई प्रोसेस का मीनिंग ही नहीं रहा. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर रिजाइन कर दिया था, रिजाइन. ठीक है, अब इम्पीचमेंट कैसे होता वो एक अलग टॉपिक है, वी विल डील इट सेपरेटली. इम्पीचमेंट किस तरीके से, पहले मोशन आता है, फिर 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, फिर किस तरीके से होता है वो अलग एक प्रोसेस है, वी विल सी इट सेपरेटली. सो दिस वाज द
इन हाउस प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो किसी भी सिटिंग जज के अगेंस्ट इफ देर इज एनी कंप्लेंट ऑफ एलिज्ड misbehavior, then an in-house committee can be constituted by the Chief Justice of India, and according to the recommendation or the findings of that in-house committee, the concerned judge can be asked to resign, or if he is not resigning, then he can be recommended for the removal by the parliament, right? तो ये आज के 3 हमारे टॉपिक थे जो कि हमने कर दिए, ठीक है। प्रीलिम्स में ये फैक्ट्स जो भी जितने भी मैंने बताए हैं ये आपके ज़रूर काम आएंगे, कहीं ना कहीं एलिमिनेशन में, कहीं सिलेक्शन में, रिजेक्शन में। तो बस ये फैक्ट्स आप याद रखिए। जैसे कॉलेजियम जनरली हम पढ़ते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड फॉर सीनियर मोस्ट जजेस, बट अगर वहाँ पर अगर ये दे दे कि अगर किसी हाई कोर्ट के किसी जज को अपॉइंट करना है, तो वहाँ पर अगर हम ऑप्शन पे लगाते हैं फॉर सीनियर मोस्ट जजेस सीजीआई के साथ में, तो वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज का हम यही इसको बंद करते हैं टॉपिक को हमारा।